है नमन उन्हें जो भक्ति की राहें आसान बना गए, श्रद्धा, प्रेम और समर्पण कर्मों से अपने सिखा गए। जी हाँ, दिल नमन करता है उन सभी दिव्य विभूतियों को जो समस्त मानवता का कल्याण करते हुए अपना जीवन मानवता के नाम समर्पित कर गए। उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं को नमन करते हुए आइए न्यूज डिवाइन की शुरुआत करते हैं। जुलाई महीने की खबरों के साथ अगस्त महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। नमस्कार, धन निरंकार। साथियों, अगस्त का ये महीना याद दिलाता है निरंकारी जगत की उन दिव्य विभूतियों की जिन्होंने मानव कल्याणकारी जीवन से समस्त मानवता को भक्ति और मुक्ति की राह दिखाई। यही मुक्ति पथ प्रदान करने के लिए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी ने लगातार दूर देशों में कल्याण यात्राएं की। देश विदेश में ये रूहानी प्रेम महकता रहा। तो किस तरह से दूर देशों में सद्गुरु की रहमतें बरसी, आइए देखते हैं उन रहमतों की कुछ झलकियां। न्यूज डिवाइन के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी ने यूरोप, यूके एवं नॉर्थ अमेरिका के अनेक शहरों में अपनी रहमतें बरसाई। अनवरत चलती इसी कल्याण यात्रा का अगला पड़ाव बना कनाडा का टोरंटो शहर, जहां 2 जुलाई को सेंटर फॉर वननेस में दिव्य युगल के पावन आगमन के साथ ईस्ट कोस्ट समागम का शुभारंभ हुआ। सद्गुरु माता जी के आगमन पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने उनका भावपूर्ण स्वागत किया। This is Kinshuk Tinger from the News Divine team reporting from the Center for Oneness in Toronto, Canada. Today, on July 2nd, the North American chapter of the Salvation Tour reaches its final destination as Sadhguru Mataji and Nirankarī Rajputaji reach Toronto for the East Coast Samagam. The celebration begins with a vibrant welcome program featuring several heartfelt performances, beautifully tracing the history and evolution of the Sant Nirankarī mission in Canada. I'm pretty excited to perform in front of Mataji. This is my first time. And my heart is racing through the roof. We've been practicing for weeks and I really hope it makes Mataji smile. इसी दिन शाम को समस्त साध संगत को दूध जलेबी के प्रसाद के रूप में भी रहमतें प्राप्त हुई। Today on July 3rd, we are witnessing the celebration unlike any other. As the Festival of Oneness transformed the ground into a vibrant space where creativity, sports and community comes together. Every activity here today offers something for every generation to experience and enjoy. Adding to the joyous atmosphere, Sadhguru Mataji and Nirankarī Rajpitaji also participated in various activities. Every interaction became a cherished memory. On July 4th, Her Holiness Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj and Nirankarī Rajpita Ji graciously blessed the Sai Dham Food Bank in Toronto, an occasion that beautifully reflected the spirit of love, unity and selfless service to humanity. सदगुरु माता जी ने वहाँ के प्रबंधकों से भी भेंट की तथा उनके भावपूर्ण अभिनंदन को स्वीकार किया। इसी शाम को सिम्फनी ऑफ वननेस कार्यक्रम इंटरनेशनल सेंटर मिसिसागा में आयोजित किया गया। July 4th marks the evening full of music and culture. Today's event, Symphony of Oneness, brings together diverse traditions and artistic expressions. This event constituted of different musical performances and fusion presentations from diverse communities like Namdharis and the Buddhist monks that transformed the auditorium into an atmosphere of peace and reflection. हर प्रस्तुति वननेस का सुंदर संदेश दे रही थी। In the end, Sadhguru Mataji blessed the Sadh Sangat with her divine discourses. On July 5th, the East Coast Samagam reached its final day with thousands gathered with their hearts full of gratitude, united around this year's theme, Atma Manthan, the journey to self-introspection. An immersive exhibition on the theme of Atma Manthan was also thoughtfully curated by the saint devotees. I hope people are able to take away the importance of Satguru in our lives and the teachings that we can receive from Satguru and how we can implement those in our lives, such as Simran and praying. That people from different parts of America and Canada are here with their exhibitions. We also came from Ottawa with our exhibition. While the Samagam illuminated the life of devotees, countless volunteers worked quietly behind the scenes to bring it to the life. From langar to the parking to security to registration desks, backstage coordination teams and welcoming guests, every act of seva reflected the true spirit of selfless service. Throughout the Samagam, saint devotees shared their thoughts in the forms of devotional song, speeches and poems,
that reflected the message of spiritual awakening. The day concluded with the divine discourses of Nirankari Rajpita Ji and Sadhguru Mata Ji. Am I getting too attached? Am I getting too detached? Am I truly understanding the message? Am I truly walking the path? And it's only the grace of the Sadhguru that helps me reflect through the divine words, through the divine love. Each and every message, each and every discourse comes as an opportunity for self-reflection, comes as an opportunity to be a little closer to Nirankar. यहाँ आत्ममंथन की भी बात आती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, जर्नी विद इन, ये इंट्रोस्पेक्शन की जो मन से करना है कि अगर कोई किसी ने कुछ किया भी तो वो एक संत तो हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि कोई ना कोई कारण रहा होगा, आज शायद तबीयत खराब होगी, आज कोई और रीज़न होगा कि कोई इंसान चिड़चिड़ा है, तो हमें उनके उस बिहेवियर पे एक रिएक्ट बुरा नहीं करना। कनाडा से यूरोप की ओर बढ़ते हुए ये रूहानी काफिला पहुंचा नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम, जहां 8 जुलाई को कन्वेंशन सेंटर एम्स्टर्डम में दिव्य युगल की पावन उपस्थिति में विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। The anticipation that had filled countless hearts for weeks finally transformed into moments of immense joy as devotees witnessed the divine arrival of Sadhguru Mataji and Nirankari Rajpita Ji. सदगुरु माताजी ने सर्वप्रथम वेन्यू पर सजे एग्जीबिशन का अवलोकन किया, जहां आत्ममंथन के संदेश को रचनात्मक और गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया था। इस अवसर पर अनेक धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के गणमान्य प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए और सदगुरु के पावन आशीर्वाद प्राप्त किए। Children presented their innocence through soulful performances. Youth expressed their devotion through music. Every presentation became a humble offering at the lotus feet of Sadhguru. Blessing the congregation, Nirankari Rajpita Ji inspired everyone to nurture humility, gratitude and selfless service in every aspect of their lives. तत्पश्चात सदगुरु माता जी ने समस्त मानव परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की द जर्नी विद इन, ये कोई इम्पॉर्टेंट ओकेजन के लिए आत्ममंथन को नहीं, हर पल में भक्त करते हैं चेतन होके, क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट फ्रॉम द हेड, कि सिर्फ एक साइकोलॉजिकल या एक मेंटल लेवल पे नहीं हमने सोचना, कोई रैशनल एनालाइज करने की बात नहीं है, यहाँ एक मन की बात हो रही है, ये एक स्पिरिचुअल एंगल की और एक सेल्फ ग्रोथ की बात हो रही है कि कैसे एक सेल्फ करेक्शन मोड पे खुद को डालकर अपने जीवन को चलाना है। रहमतें बरसाते हुए अगले दिन ये आध्यात्मिक परोपकार का सिलसिला जर्मनी के शहर डसलडॉर्फ पहुंचा। जैसे ही सदगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी सत्संग स्थल पर पहुंचे, हर ओर उत्साह और हर्षोल्लास का वातावरण था। Smiling faces, folded hands, and eyes filled with gratitude reflected the joys of devotees who had gathered from nearby German cities as well as distant regions to seek the divine blessings of Sadhguru Mataji and Nirankari Rajpita Ji. Every melody carried devotion, every moment reflected humility, and every presentation echoed the central message of love, encouraging everyone to look beyond the outer world and begin the journey within. हर ओर बस सुकून और भक्ति के रंग बिखरे और मानवता का गुलदस्ता सजा हुआ नजर आया। सत्संग के बाद बच्चों और युवाओं द्वारा भक्ति से परिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने अपने सद्गुरु को रिझाने का प्रयास किया। अगले दिन साल्वेशन टूर जर्मनी के ही एक और प्रमुख शहर फ्रैंकफर्ट पहुंची, जहां दूर दूर से आई साध संगत ने भक्ति और समर्पण के साथ सत्संग कार्यक्रम में भाग लिया। समागम से पूर्व सदगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी ने युवाओं द्वारा सजाई गई एग्जीबिशन का अवलोकन किया एवं सभी को स्नेहपूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया। सत्संग कार्यक्रम के दौरान मंच से भक्ति भरे गीत, काव्य रचनाएं और प्रेरणादायक व्याख्यानों ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। यहाँ भी सभी को दिव्य युगल के आशीर्वचनों द्वारा
आध्यात्मिक खुराक प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। After that, children and youth once again enriched the program through graceful cultural presentations that reflected innocence, dedication and gratitude towards their beloved Sadhguru. 11 जुलाई को सैल्वेशन टूर का अगला पड़ाव बना जर्मनी का शहर केम्पटन। यहाँ पर दिव्ययुगल का आगमन होते ही ऐसा महसूस हुआ मानो सारा शहर ही सद्गुरु के स्वागत में उमड़ आया हो। फूलों से सजी पालकी पर जब नूरानी जोड़ी का आगमन हुआ तो मानो हर दिल मुस्कुराकर तालियां बजाकर कह उठा, हुजूर आपका स्वागत है। सत्संग कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने गीत, व्याख्यान और कविताओं के द्वारा अपने भाव प्रकट किए। अंत में निरंकारी राजपिता जी ने मानवता को मार्गदर्शन प्रदान किया और फिर सभी को सद्गुरु माता जी के आशीर्वचन प्राप्त हुए। सत्संग कार्यक्रम की समाप्ति के बाद सद्गुरु माता जी ने आए हुए डेलीगेट्स को दर्शन व आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर केम्पटन में एक ऐसा सबब भी बना जहां निरंकारी राजपिता जी ने सभी युवाओं के साथ बैठकर फुटबॉल मैच भी देखा और सभी को खुशियां प्रदान की। जर्मनी में अपार खुशियां व प्रेम बरसाने के बाद सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी 12 जुलाई को ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक पहुँचे। यहाँ पर भी सत्संग के रूप में मानवता का गुलदस्ता सजा हुआ था। पूरा सत्संग परिसर भक्तिमय गीतों, व्याख्यानों तथा काव्य रचनाओं से गूंज रहा था। यहाँ पर भी नूरानी जोड़ी ने सभी को अपना स्नेहपूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया तथा भक्ति का मार्गदर्शन प्रदान किया। सत्संग के बाद भक्त कलाकारों ने संगीत की सुंदर प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने सद्गुरु को रिझाने का प्रयास किया। 13 जुलाई को सत्य का ये कारवां अपने अगले पड़ाव इटली के ऐतिहासिक शहर मंटोवा पहुंचा, जहां एक विशाल स्टेडियम में सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी की पावन उपस्थिति में भव्य समागम का आयोजन किया गया। इस समागम में सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि यूरोप के विभिन्न शहरों और देशों से आए श्रद्धालुओं का एक गुलदस्ता सजा, जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का सुंदर संदेश दे रहा था। The congregation was further enriched by the gracious presence of distinguished dignitaries from the region, including Mr. Carlo Bottani, President of the province of Mantova, whose participation reflected the growing appreciation for mission's universal message of peace, compassion and human unity. यहाँ भी निरंकारी राजपिता जी ने सभी को अपने अनमोल मार्गदर्शन द्वारा नवाजा। तत्पश्चात सद्गुरु माता जी ने अपने विचारों में फरमाया, आज यहाँ मंतोवा में सभी ये प्यार की बात, आत्ममंथन की बात, इस प्रभु निराकार की बात, ये सच्चाई की बात, ये सिर्फ कर ही नहीं रहे, ये जी कर भी यही गुणों को अपनाते हुए अपने जीवन में रह रहे हैं। ये शहर का भी जैसे इधर का नाम है मंतोवा, तो सुनने में ऐसे ही आ रहा है मंतुवल, कि मन जब इस निराकार की तरफ होता है तो ही जीवन अपने असली रूप में जिया जा सकता है, पूरे फुल पोटेंशियल में जिया जा सकता है। समागम के उपरांत एक और ऐसा मंजर नजर आया जहां साथ संगत को दिव्ययुगल की अपार रहमतें प्राप्त हुई और सभी को चरणों में नमस्कार का अवसर प्राप्त हुआ। 14 जुलाई को मांटोवा के आध्यात्मिक अनुभवों को हृदय में संजोते हुए ये रूहानी काफिला अपने अगले पड़ाव इटली के आरिजो पहुंचा। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के आगमन पर श्रद्धालुओं ने भावभीना अभिनंदन किया और नन्हे मुन्ने बच्चों ने गुलाब अर्पित कर मासूमियत के साथ दिव्ययुगल का वेलकम किया। As devotees continued to arrive from different parts of Italy and neighboring European countries, the congregation beautifully reflected the mission's ever-growing family that transcends geographical boundaries. यहाँ पर भी गीतों, व्याख्यानों और कविताओं में रूहानियत के संदेश दिए गए। इस अवसर पर अनेक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी उपस्थित होकर सद्गुरु का आभार प्रकट किया। Their gracious participation reflected mutual respect and strengthened the message that true spirituality has the power to unite humanity beyond all differences. Blessing the congregation, Nirankari Rajpita Ji reminded everyone that the greatest journey a human being can undertake is the journey from ego to humility. Thereafter, Sadhguru Mataji lovingly explained that self-introspection enables an individual to recognize not only one's shortcoming but also the infinite grace of Divine Nirankar.
समागम के समापन के पश्चात बच्चों ने संगीतमय प्रस्तुतियों के जरिए अपने मासूम भाव सद्गुरु के चरणों में अर्पित किए। यूरोप की कल्याण यात्रा का अगला अध्याय इटली के रोम में लिखा गया। The eternal city welcomed the divine convoy with warmth, reverence and immense anticipation as devotees gathered from across Italy and several neighboring countries to receive the divine blessings of Sadhguru Mataji and निरंकारी राजपिता जी। यहाँ पर भी गीतों, व्याख्यानों और कविताओं में रूहानियत के संदेश दिए गए। अंत में निरंकारी राजपिता जी ने मानवता को मार्गदर्शन प्रदान किया और फिर सभी को सद्गुरु माता जी के आशीर्वचन प्राप्त हुए। सत्संग समाप्त होने के पश्चात जब सभी को दिव्ययुगल को नमस्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो सभी के चेहरे पर एक ही भाव नजर आ रहा था, कृतज्ञता। इटली के पावन समागमों के पश्चात साल्वेशन टूर मेडिटेरेनियन सागर के मध्य स्थित सुंदर द्वीप देश माल्टा पहुंचा। छोटा सा देश होने के बावजूद भी इस धरती पर साथ संगत का प्रेम और समर्पण किसी भी रूप में कम न था। समागम के दौरान भक्ति भरे गीत, विचारों और कविताओं के माध्यम से जीवन को ब्रह्मज्ञान के प्रकाश में देखने की प्रेरणा दी गई। Blessing the congregation, निरंकारी राजपिता जी and Sadhguru Mata ji inspired everyone to follow the path of सेवा, सिमरन and सत्संग। तत्पश्चात सद्गुरु माता जी ने सभी को चरणों पर नमस्कार का अवसर प्रदान किया और फिर सभी सेवादारों को भी नमस्कार और आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त हुआ। On 19th July, next leg of this salvation tour was Barcelona in Spain. यहाँ दिव्य युगल के स्वागत के लिए साथ संगत में अपार उत्साह देखने को मिला। जैसे ही सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी समागम स्थल पर पधारे, पूरा वातावरण प्रेम, शुक्राने और आनंद के भाव से गूंज उठा। The welcome evening unfolded as a beautiful celebration of gratitude, where every presentation reflected the joy of receiving the Sadguru. Children from Spain warmly welcomed the Nurani Jodi with heartfelt expressions, while cultural performances showcase the diversity that flourishes when different traditions unite in devotion. एक अति मनोहर दृश्य उस समय देखने को मिला जब सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी ने साथ संगत के साथ डांडिया के मधुर पलों को भी साझा किया। 20 जुलाई को बार्सिलोना में भव्य समागम आयोजित हुआ। Devotees from Spain and several other neighboring countries gathered with folded hands, united by one purpose, to receive the divine guidance of the Sadguru. During Samagam, the diversity of languages beautifully demonstrated that while expressions may differ, the experience of divine love remains universal. अपने दिव्य संबोधन में निरंकारी राजपिता जी ने संगत को प्रेमपूर्ण संदेश से कृतार्थ किया। Continuing the divine message, Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj lovingly explained that Brahmgyan is the light that enables an individual to overcome ego, strengthen relationships and transform every action into an expression of devotion. इस दिव्य यात्रा का अगला पड़ाव था फ्रांस की राजधानी पेरिस, जहां 23 जुलाई को दिव्य युगल के आगमन पर साध संगत ने स्वागत किया। हर हृदय सद्गुरु के दिव्य दर्शनों के लिए आतुर था। Throughout the congregation, the stage became a medium through which spirituality flowed in many beautiful forms. Devotional music, inspiring thoughts, and heartfelt cultural expression together created an atmosphere completely immersed in bhakti. Blessing the congregation, Nirankari Rajpita Ji and Her Holiness Sadhguru Mata Ji inspired everyone to follow the path of spirituality. समागम के पश्चात नन्हे बच्चों द्वारा डांस परफॉर्मेंसेस सद्गुरु की मुस्कुराहट का कारण बनी। सेवा दल के भाई बहन अपने आराध्य के समक्ष भक्ति और आनंद में झूमते हुए नजर आए। पेरिस में रहमतें बरसाने के बाद 24 जुलाई को ये कारवां यूके के ईस्ट लंदन पहुंचा, जहां ग्रीनविच बोरो हॉल ईस्ट लंदन में दिव्य युगल के स्वागत में एक भव्य वेलकम प्रोग्राम का आयोजन किया गया। Following the welcome program, a spiritual congregation was organized in which local residents and several distinguished guests, including the mayor, also participated. यहाँ भी सभी को आदरणीय निरंकारी राजपिता जी का दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और अंत में सद्गुरु माता जी के पावन वचनों द्वारा सभी ने अपने जीवन को ब्रह्म ज्ञान से प्रज्वलित करने की प्रेरणा प्राप्त की। On 26th July, next stop of this salvation tour was Center for Oneness, Birmingham. यहाँ भी एक भव्य समागम का आयोजन हुआ। The congregation reflected a beautiful spirit of devotion, where every prayer and every hymn inspired hearts towards deeper self-realization.
राजपिता जी और सद्गुरु माता जी के दिव्य विचारों ने संगत को याद दिलाया कि ब्रह्म ज्ञान तभी सफल होता है जब उसकी सुगंध हमारे व्यवहार और सेवा में भी अनुभव होने लगे। ऊपर ऊपर के आचरण, ऊपर ऊपर की सफ़ेदी अक्सर समय आने पर उतर जाती है। कोई परिस्थिति, वी आर हियरिंग अबाउट द थॉट एक्सपेरिमेंट अबाउट द वेदर, किसी की धूप से वो ऊपर का आचरण उतर जाएगा, किसी का किसी के शब्दों से उतर जाएगा, किसी का किसी ऐसी घड़ी पर उतर जाएगा जहाँ अपनी धन संपत्ति को बचाना है। कोई ना कोई ऐसे कारण, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब ये ऊपर के आचरण बदल जाते हैं। पर अगर अंदर से एक बार बदलाव हो जाए, अंदर से मैल मिट जाए, अंदर से प्राप्ति हो जाए, तो वो फिर बदली नहीं जा सकती, क्योंकि अपने सही स्वभाव को मैं जान लेता हूँ, अपनी पहचान को मैं पा लेता हूँ। The Samagam program concluded with Namaskar, leaving every heart filled with peace and renewed spiritual strength. 27 जुलाई को दिव्य युगल का आगमन डबलिन, आयरलैंड में हुआ। यहाँ जब छोटे छोटे बच्चों ने अपने सद्गुरु का स्वागत किया तो वहीं सद्गुरु ने भी उन पर स्नेह प्यार लुटाया, making those simple moments unforgettable for every family present. The welcome continued with a vibrant Irish culture performances by children who beautifully expressed their love through traditional dance forms. 28 जुलाई को डबलिन में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में भी सद्गुरु माता जी ने सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई। Esteemed guests also sought the blessings of the Sadguru, while Namaskar became another deeply emotional moment where every bowed head reflected gratitude, faith and spiritual fulfillment. 29 जुलाई को कल्याण यात्रा का अगला पड़ाव था स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर, जहां सेवा दल के भाई बहनों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से सद्गुरु का स्वागत किया। ग्लासगो डेस्टिनी चर्च में सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी की पावन उपस्थिति में समागम का आयोजन हुआ। भक्ति गीत, कविताएं और दिव्य विचारों ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिकता से भर दिया। ब्लेसिंग द कॉन्ग्रीगेशन, निरंकारी राजपिता जी गाइडेड ऑल फॉर सेल्फलेस डिवोशन। तत्पश्चात सद्गुरु माता जी ने समस्त मानव परिवार को अपने आशीर्वचनों से निहाल किया। 29 जुलाई को कल्याण यात्रा का एक स्टॉप ओवर यूके का ब्रेडफर्ड भी रहा, जहां रात्रि के समय नूरानी जोड़ी का आगमन हुआ। यहाँ नमस्कार के पवित्र क्षणों ने हर हृदय को एक बार फिर कृतज्ञता से भर दिया। अगले दिन 30 जुलाई को जब नूरानी जोड़ी का आगमन यूके के मैनचेस्टर में हुआ तो श्रद्धालुओं ने भावभीना स्वागत किया। कल्चरल परफॉर्मेंसेस के माध्यम से भक्त महापुरुषों ने अपनी खुशी दिव्ययुगल के समक्ष प्रकट की। इसके पश्चात सत्संग कार्यक्रम में आए हुए श्रद्धालुओं तथा डेलीगेट्स ने मंच से आने वाले श्रद्धा भक्ति के पावन संदेश सुने और अंत में निरंकारी राजपिता जी और सद्गुरु माता जी के पावन आशीष वचनों के भागीदार बने। यहाँ पर रहमतें बरसाकर सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी 31 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम के कॉवेंट्री पहुँचे। The gathering reflected the beautiful coming together of hearts from different walks of life, united by the love for Sadguru. हर चेहरे से खुशी और शुक्राने का भाव प्रकट हो रहा था। As the divine presence turned the congregation into a memorable celebration of faith and togetherness. 1 अगस्त को दिव्ययुगल की यूरोप की एक कल्याण यात्रा डेनमार्क के कोपेनहेगन पहुंची। यहाँ पर भी सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के स्वागत के लिए एक अनुपम उत्सव का नजारा देखने को मिला। Next day on 2nd August, Scandinavian Samagam was organized in Copenhagen, Denmark. यहाँ पर भी सत्संग कार्यक्रम में दूर दूर से श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। आए हुए श्रद्धालुओं ने जहाँ रूहानी खुराक की प्राप्ति की तो वहीं सभी को निरंकारी राजपिता जी की प्रेरणा भी प्राप्त हुई और अंत में सभी ने सद्गुरु के पावन आशीर्वाद का लाभ प्राप्त किया। यहाँ रहमतें बरसाने के बाद 6 अगस्त को सद्गुरु माता जी यूके के ब्रैडफर्ड पधारे। दिव्ययुगल के आगमन पर संतों ने अपनी खुशी व्यक्त की। तत्पश्चात ब्रैडफर्ड के निरंकारी सत्संग भवन में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां रूहानियत के प्रवाह के बीच सद्गुरु के चरणों में नमस्कार का अवसर सभी श्रद्धालु भक्तों को प्राप्त हुआ। 8 अगस्त को दिव्ययुगल लंदन पहुंचे, जहां एक स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया था। दिव्ययुगल ने स्वयं श्रद्धालु भक्तों के साथ इन खेलों में भाग लेकर सभी के साथ खुशियां बांटी और अगले दिन 9 अगस्त को लंदन यूके में विशाल समागम का आयोजन किया गया।
यूनाइटेड किंगडम का लंदन शहर इस कल्याण यात्रा का अंतिम पड़ाव रहा। यहाँ निरंकारी राजपिता जी और सद्गुरु माता जी ने अपने अनमोल वचनों व पावन आशीर्वादों से श्रद्धालुओं को भरपूर निहाल किया। यहाँ तो बात स्पिरिचुअलिटी की है, ये परमात्मा की है जो एक बराबर हर एक में है। तो ये फर्क आ ही नहीं सकते उनकी नज़रों में जो हर एक में इसके दर्शन करते हैं। जब ये बात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये एहसास आ जाता है कि पूरे यूनिवर्स में ये परमात्मा एक बराबर है, तो फिर अब कौन ऊंचा कौन नीचा, कौन एक हमारी सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से हमारे एक दर्जे का कौन नीचा, सभी एक बराबर, सभी श्रेष्ठ। और वो दिल इस तरह ही हर एक को मान लेता है, वो रिस्पेक्ट आ जाती है कि कैसे हर किसी में जब परमात्मा है तो हमारे मन में परमात्मा है, और वो दर्जा जो दिया वो अब हर एक इंसान को मन वही दर्जा देता है। यूके, यूएस और यूरोप के सभी समागमों में सेवा दल के भाई बहनों ने निष्काम सेवा द्वारा अपने सद्गुरु और समस्त साथ संगत का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किया। सेवा का रूप चाहे कोई भी रहा हो, पर हर किसी सेवादार के उत्साह और जज्बे में भावपूर्ण समर्पण का ही रहा। इस पूरी यात्रा के ही दौरान सद्गुरु माता जी और राजपिता जी ने अनेकों स्थानों पर महापुरुषों के गृह स्थानों में जाकर उनको इस रूप में भी खुशियां प्रदान की। इस तरह से सभी को अपने पावन प्रेम और आशीर्वादों से नवाजते हुए संपन्न हुई सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी की लगभग 2 महीनों की ये विश्व कल्याण यात्रा। जैसा अभी आपने देखा कि सतगुरु किस तरह से दूर देशों में रूहानी प्रेम बरसा रहे थे। गुरमत के सांचे में ढले रूहानी प्रेम से महकते ये दिल सेवा करना भी जानते हैं, क्योंकि इनके रहनुमा हैं सतगुरु। जैसे निरंकारी राजमाता जी ने कहा था, सतगुरु ईश्वर और मनुष्य के बीच की कड़ी हैं। आज पूरे विश्व में ईश्वर से मनुष्य को जोड़ने के लिए सतगुरु की रहनुमाई में मिशन की ओर से अनेक सामाजिक गतिविधियां की जा रही हैं। तो आइए देखते हैं SNCF डायरी इस रिपोर्ट की नजर से। संत निरंकारी मिशन के द्वारा नर सेवा नारायण पूजा के तहत की जाने वाली सामाजिक गतिविधियां जुलाई के महीने में भी लगातार जारी रहीं। पिछले महीने देश भर के अलग अलग स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए। इसी के तहत 12 तारीख को दिल्ली के लाजपत नगर, 19 तारीख को करोल बाग तथा 2 अगस्त को नथुपुरा में ब्लड डोनेशन शिविर लगाया गया। साथ ही 2 अगस्त को अहमदाबाद के ओढव में भी रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इन सभी रक्तदान शिविरों में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान कर मानवता को जीवन दान देने में सहयोग दिया। न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ मैं मोहित इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के करोल बाग में स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में। आपने आज फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया, आपको कैसा महसूस हो रहा है और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरा दोस्त आता है निरंकारी मिशन पे, तो मेरे को वो आज लाया था, तो मेरे को अच्छा लगा गया था आगे। हम थोड़ा सा ब्लड डोनेट करके हम किसी की जान बचा सकते हैं, किसी की लाइफ सिक्योर कर सकते हैं, तो ये देने में कोई बुराई नहीं। एक्चुअली मेरी स्कूल फ्रेंड है, क्लासमेट है, तो उसने स्टेटस लगाया था, तो मैं बहुत टाइम से डोनेट करने का सोच रही थी, बट थ्रू आउट उसके स्टेटस मैंने किया और मैंने यहाँ का सुना भी है बहुत ज़्यादा कि अच्छी जगह प्रोवाइड करते हैं। डोनेट करने से पहले हम बहुत टाइम सोचते हैं ना कि लोग कहाँ यूज़ करेंगे, किसको सेल कर देंगे, बट इस संस्था के बारे में बहुत पहले भी सुना हुआ है और वो शायद से 16 ईयर्स से जुड़ी हुई है इससे, उसके थ्रू मैंने डोनेट किया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत मन से इच्छा थी कि मेरा ब्लड डोनेट हो जाए और वो हो गया। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए क्योंकि हमारे ब्लड डोनेशन से बहुत सारी जिंदगियां बच सकती हैं। मैं सृष्टि गंधर्व न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के नथुपुरा में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बुराड़ी विधानसभा के विधायक संजीव झा जी। निरंकारी मिशन सामाजिक काम में जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है वो काबिल तारीफ है। आज ब्लड कैंप का आयोजन है। सबसे ज़्यादा ब्लड देने का काम निरंकारी मिशन के जो साथी हैं वो करते हैं, काबिल तारीफ है। कोरोना के समय में हमने जब एक महामारी थी, मैं खुद ही निरंकारी मिशन के साथ मिल करके उनको रिक्वेस्ट किया, तो सबका खाना देने का काम, साफ सफाई का काम। तो मुझे लगता है कि ये जो ह्यूमन वेलफेयर में जिस तरह से
निरंकारी मिशन काम करती है, मुझे लगता है कि इसका कोई जोड़ा नहीं है। आज ऐसा मौका मिला कि जन्मदिन पर ये रक्तदान करने का मौका मिला, सो आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड। जुलाई के ही महीने में 5 तारीख को मिशन की ओर से महाराष्ट्र के वर्ली में तथा 1 अगस्त को सानपाड़ा में आई चेकअप कैंप लगाया गया, जिसका स्थानीय लोगों ने लाभ उठाया। इसी लड़ी में 29 जुलाई को पंजाब के बरनाला में भी आई चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा लोगों के नेत्र की जांच की गई। यहाँ भी सभी ने मानव समाज के लिए किए गए इस कार्य में अपना योगदान दिया। इसी प्रकार महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर में हर साल जुलाई के महीने में लगने वाले आध्यात्मिक मेले में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से 23 से 25 जुलाई तक अनेक सुविधाएं प्रदान की गईं। इस दौरान वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था की गई, प्रकाशन के स्टॉल लगाए गए और मेडिकल सुविधाएं भी प्रदान की गईं। इस अवसर पर निरंकारी सेवा दल के भाई बहन निष्काम भाव से आगंतुकों की सेवा करते हुए नजर आए। इस उपलक्ष्य में आने वाले श्रद्धालुओं को सत्संग कार्यक्रम के माध्यम से संत निरंकारी मिशन के आदर्शों और शिक्षाओं से भी अवगत कराया गया। ज्ञात हो, इन्हीं दिनों असम भीषण बाढ़ की चपेट में रहा, जिससे कई गांव और कस्बे प्रभावित हुए। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में संत निरंकारी मिशन के सेवादार राहत सामग्री लेकर प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। भोजन और आवश्यक वस्तुओं के साथ उन्होंने पीड़ित परिवारों का हौसला बढ़ाया और अपनेपन का एहसास दिलाया। संपूर्ण हरदेव वाणी के माध्यम से बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जो समुंदर से जल लेकर मेघ उसे बरसाते हैं, संत प्रभु से प्रेम लेकर दुनिया पर लौटाते हैं। ये प्रेम किस तरह से सामाजिक सेवाओं के माध्यम से विश्व भर में मानवता पर बरस रहा है, तो आइए देखते हैं इन सामाजिक और आध्यात्मिक सेवाओं की रिपोर्ट अपने अगले सेगमेंट मिशन ओवरसीज में। Devotees across overseas branches continued to spread the mission's message through humanitarian services and interfaith initiatives. On 9th July, devotees of S&M Calgary branch hosted Namdhari Saints at Center of Oneness, Calgary. On 12th July, devotees of Calgary branch participated in an interfaith spiritual event organized by Hindu Cultural Society. In Montreal, Canada, over 300 freshly prepared meals were served to the homeless through the annual food donation drive with the Old Brewery Mission. A cleanliness drive was also carried out in Nepal by the volunteers of Sant Nirankari Mission. In Sydney, Australia, the annual Winter Sleep Out 2026 was organized to raise awareness and support for people experiencing homelessness. With the grace of Satguru Mataji, we've been blessed with the opportunity to hold a wonderful winter sleep out tonight to raise funds for those in need. We've had various activities. We enjoyed a wonderful community meal together, and there's a bonfire going on right now with the whole community involved, which really reflects our mission's values. इन गतिविधियों से जाहिर होते हैं भक्ति के मायने, रूहानी प्यार के मायने। साथियों, जैसे माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने फरमाया कि कुछ भी हो, सिर्फ प्यार ही प्यार हो, और ज्ञान के बाद ये निस्वार्थ प्यार का भाव ही इंसान को संकीर्णता के दायरों से निकालकर मुक्ति की ओर ले जाता है। मुक्ति की राह दिखाता संत निरंकारी मिशन सत्संग कार्यक्रमों तथा अनेक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के जरिए समाज के भले की ओर निरंतर अग्रसर है। आइए ऐसे ही कुछ और खबरें देखते हैं इस रिपोर्ट में। जुलाई के महीने में संत निरंकारी मिशन द्वारा स्थान स्थान पर अनेक आध्यात्मिक गतिविधियां की गईं। 11 जुलाई को दिल्ली से सटे गाजियाबाद में वननेस टॉक्स का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा हु एम आई। इस आयोजन में आए हुए जिज्ञासुओं को स्वयं की पहचान के प्रति जागरूक किया गया तथा इस विषय से संबंधित सवालों के संतोषजनक उत्तर दिए गए। स्थानीय निवासियों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 1 अगस्त को मुंबई के अणु शक्ति नगर में वननेस टॉक्स का आयोजन हुआ और वहां पर भी सैकड़ों की संख्या में स्थानीय निवासियों ने इस सेशन का भरपूर लाभ उठाया। आज न्यूज डिवाइन की टीम आ पहुंची है गाजियाबाद के एक सोसाइटी में, जहां पे संत निरंकारी मिशन द्वारा वननेस टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक यंगस्टर्स और स्थानीय निवासियों ने हिस्सा लिया। शहनाज जी, आज आपने वननेस टॉक का ये जो प्रोग्राम अटेंड किया है, आपका अनुभव कैसा रहा जी?
जी बहुत अच्छा रहा। मेरे ख्याल से तो ये इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो होते रहने चाहिए, सेशंस होते रहने चाहिए, क्योंकि आज की ज़माने की जो भाग दौड़ है ना, उसमें लोग जितनी परेशानियां उनके अंदर है, जितना वो स्ट्रेसफुल उनकी लाइफ हो चुकी है, इस तरह के सेशन उनको इन चीज़ों से निकलने में काफ़ी मदद करती है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आया था। मुझे और कुछ नहीं पता था यहाँ क्या होना है क्या नहीं होना, पर मैंने 3 घंटे लगभग पूरा एंजॉय किया और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ क्वेश्चन उधर से आए, हमने बहुत कुछ आंसर दिए, कुछ हमने भी क्वेश्चन किए, उन्होंने आंसर दिए, और मेरी लाइफ में बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस प्रोग्राम को, और जो भी इसके व्यवस्थापक थे उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मतलब मैं कुछ सोच के आया था कि सत्संग है, ये चीज़ है, बट सत्संग से एक डिफरेंट लीग है ये, और मैं धन्यवाद करूँगा संत निरंकारी की पूरी कमेटी को, पूरे लोगों को, कि इस तरह का कार्यक्रम जो है इस सोसाइटी में आयोजन किया है। तो इस सेशन के बाद हमारे साथ आदरणीय अतुल जी भी जुड़े हुए हैं। ये स्वयं से एक साक्षात्कार का एक अच्छा अनूठा अनुभव रहा। आई वुड लाइक टू अटेंड सिमिलर सेशंस henceforth। एक बड़ी खुशी हुई है सीखने के लिए अपने आप को, हम क्या है और हम आगे क्या कर सकते हैं। बहुत सारा चीज उन्होंने हमको वक्ताओं ने मार्गदर्शन किया है, तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं, ऑर्गेनाइजर्स का। इसी प्रकार जुलाई के महीने में देश भर में स्थान स्थान पर महिला समागम, बाल समागम और इंग्लिश मीडियम समागम आयोजित किए गए। महिला समागमों में जहां महिला श्रद्धालुओं ने समर्पण भाव से भाग लिया, भक्ति भरे गीतों, व्याख्यानों और कविताओं के माध्यम से सत्य संदेश दिया, तो वहीं बाल समागमों में भी बच्चों की भारी संख्या में भागीदारी देखने को मिली। बच्चे उत्साहपूर्वक हर गतिविधि में भाग लेते हुए नजर आए। बच्चों ने इस अवसर पर गायन, वादन, व्याख्यान तथा कविता पाठ आदि का सहारा लेकर अपने भक्ति भाव प्रकट किए। और इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम समागमों में भी बच्चों तथा युवाओं ने भाग लेकर मिशन का संदेश इंग्लिश भाषा में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। और ऐसे ही अनेकों स्थानों पर ओपन सत्संग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इन सभी आध्यात्मिक गतिविधियों से सीख लेते हुए न्यूज डिवाइन के इस सफर को अब यहीं पर विराम देते हैं। मुक्ति पर्व समागम और अगस्त महीने की खबरों के साथ सितंबर के महीने में हम फिर से आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार।